Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering, the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is thermodynamics, the subject of BTech third semester, Mechanical Engineering branch from AKTU syllabus. In my previous lecture, I have talked about the concept of refrigeration, about Rankine cycle, about various laws associated with the thermodynamics and various analysis associated with the thermodynamics. So, today I am proceeding my lecture in refrigeration concept. So, if we talk about the principle of refrigeration, basically the refrigeration is the process of maintaining low temperature. That means it's a process in which the cooling effect is being produced. Now, how the cooling effect is produced? Definitely, if we want to cool the space, that means we need to extract certain amount of heat from the space, and the substance which is responsible for abstracting the certain amount of heat from the space required for cooling, that is known as refrigerant, and the process is known as refrigeration process. So, we can say that refrigeration is the process in which the certain amount of heat is extracted from the space, so that the temperature of the space decreases. In this way we can say the cooling effect is being produced. Principle of cooling, basically we are having three cases. I have already discussed in my earlier classes. The first one is the melting of solid, the second one is the sublimation, and the third one is your vaporization. So, basically here I am talking about the vaporization process, because a vaporization of the liquid is mainly used in most of the refrigerating components. We are not using sublimation, we are not using melting of solid substance. In most of the cases we are using only vaporization process, so that the refrigeration effect will produce. So, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है वेपोराइजेशन से. If we talk about the principle of refrigeration, the process of cooling is achieved by the liquid vaporization, in which it absorbs the heat from the space surrounding it, which is known as latent heat of vaporization. Suppose the space is given to you, this is liquid. What will happen if this is refrigerant which is having very low boiling point? Then what will happen? It will absorb the certain amount of heat from the space and get converted into vapor form. This is the basic definition. This is the basic form of vaporization. That means, vaporization is the process in which the liquid refrigerant converted into vapor refrigerant. In case of refrigerant, if we are talking about, so in case of refrigerant, the vaporization is the process in which the liquid refrigerant converted into vapor form. Now, how it happen? It happen only if it absorb the certain amount of heat from the space. That means, this liquid is given to you. If it absorbs certain amount of heat from the space, then what will happen? It will get converted into vapor form at the constant temperature. Then we say that this is the amount of heat which is extracted from the space. This is known as latent heat of vaporization. That means, वो जो हीट जो एब्जॉर्ब हुई है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर जो ये हीट एब्जॉर्ब हुई है इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. प्रोसेस वेपोराइजेशन है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सो द बेसिक हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज लेटेंट हीट. यहाँ पर लेटेंट हीट इज ही आपकी बेसिक जो हीट है वो रिस्पॉन्सिबल है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. तो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे वेपोराइजेशन है, जिसमें जब वेपोराइजेशन लिक्विड का होगा, लिक्विड वेपोराइज करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उस स्पेस को ठंडा करेगा और वहाँ पे हमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होगा. इसलिए द बेसिक प्रिंसिपल जो रेफ्रिजरेशन का है वो बेसिकली विच इज डीलिंग दिस इज डीलिंग विद द वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट. अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, वेपोराइजेशन ऑफ पेट्रोल, वेपोराइजेशन ऑफ स्प्रिट, अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हाथ में अगर पेट्रोल ले लें हम लोग, तो होगा क्या कि इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, लेकिन पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से
इट विल एक्सट्रैक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम आवर स्किन, यानी वो पेट्रोल सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, अपनी स्किन से। हमारी स्किन से जब एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें ठंडा महसूस होगा। इसलिए जब पेट्रोल जब वेपोराइज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हमें उस जगह वहाँ पे ठंडा लगता है। दिस इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। ये भी एक रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, छोटा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए। होगा क्या, जब अपनी स्किन पे पेट्रोल टच करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, खुद वो चेंज हो जाएगा लिक्विड से वेपर के फॉर्म में। दैट मीन्स द वेपोराइजेशन विल टेक प्लेस, द फेज ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म, and during this process it will absorb certain amount of heat from our skin due to which we feel cooled. अब हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन, या ये भी एक छोटा सा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ फील होगा। अगर स्प्रिट को ले लें तो वो भी वोलेटाइल नेचर की होगी, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को और हमें ठंडा महसूस होगा, रेफ्रिजरेशन हो जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर भी छोटा सा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस हो गया। हम लोग बात करें यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके हम लोग समझेंगे कि कैसे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे रेफ्रिजरेंट वर्क करता है हमारा। अ कंटेनर, द वाटर इज गिवन टू यू इन द पर्टिकुलर कंटेनर। यहाँ पे एक कंटेनर पे पानी आपको गिवन है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1.01 बार। यहाँ पे 1 बार है, उसको 1.01 बार भी कह सकते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1.01 बार हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा घट जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कुछ डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अगर 1.01 बार की अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर कोई वाटर अगर रखा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस केस में होगा क्या, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसका, वाटर का। बाहर का टेम्परेचर हमारा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बाहर का टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वाटर का टेम्परेचर भी 25, 26 कुछ भी मान सकते हैं, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या होगा, ये पानी बॉयल करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल नहीं करेगा, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तभी इसमें वेपोराइजेशन होगा। प्रोसेस तभी वेपोराइजेशन का होगा यहाँ पे, तभी जब इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशनल सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इस पानी को देना पड़ेगा बाहर से। जैसे ही हम बाहर से एडिशनल हीट इसको देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 25, 26, 27 एंड सो ऑन 99, 100 तक पहुँच जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में पहुँचेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वेपर। यानी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी है ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में, सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मीन्स during this process the temperature remain constant, 100 degree centigrade, 100 degree centigrade, but the phase transformation take place, water that means liquid, vapor that means the phase transformation take place from liquid to vapor at constant temperature 100 degree centigrade. During this process it will absorb certain amount of heat. That kind of heat is known as latent heat of vaporization and the process is known as vaporization. यानी ये process vaporization कहलाएगा। और जो heat is gone on, जो पानी absorb करेगा, that amount of heat is known as latent heat of vaporization. बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, बॉइलिंग तभी होगी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा 1.01 बार के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को वो एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है रेफ्रिजरेशन की। यहाँ पर
रेफ्रिजरेशन जाहिर सी बात है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बाहर, अगर सेम इसी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर इसको नॉर्मली पानी अगर हम लोग रख दें तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन हमारा प्रोसीड नहीं करेगा, रेफ्रिजरेशन हमारा इफेक्ट हमको नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी ऊपर है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक चीज़ और, तो अब यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी हम लोग वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में वाटर को एज ए रेफ्रिजरेंट यहाँ के केस में हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका काफ़ी ज़्यादा है। अगर बाई चांस अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाई चांस इसी वाटर को आपको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करना है, तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट को हमें कम करना पड़ेगा, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट को उस टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, उससे भी नीचे लाना पड़ेगा जहाँ पर हमको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इसके बॉइलिंग पॉइंट को हमको 10 से भी नीचे करना पड़ेगा, 10 से भी नीचे करना पड़ेगा, तभी उस टेम्परेचर पे ये वाटर बॉयल करेगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उस स्पेस को ठंडा कर देगा और हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इसके बॉइलिंग पॉइंट को हमें कम करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर एक आंसर ये भी हो जाता है कि अगर इसको सेम वाटर को एज ए रेफ्रिजरेंट हमें यूज़ करना है, तो जाहिर सी बात है इसके बॉइलिंग पॉइंट को हमें कम करना पड़ेगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट को कम करने का मतलब ये है कि इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा कम से कम होगा, तभी यहाँ पे कम टेम्परेचर पे यहाँ पे बॉइलिंग पॉसिबल होगी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की कंडीशन जो है हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा या कूलिंग इफेक्ट हमको मिलेगा। तो बेसिकली water can also be used as a refrigerant, but subject to the condition that the boiling point of the water must be less than the required temperature. In this case, और यहाँ के केस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको इन जनरल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपको जो वाटर जो स्पेस का टेम्परेचर चाहिए वो 25 से कम चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग वाटर को एज रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं कर सकते। कब यूज़ कर सकते हैं? जब इसका बॉइलिंग पॉइंट हम घटाएंगे। हम लोगों ने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट हमको कम करना चाहिए पानी का, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमको कम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, वी आर हैविंग द सेकेंड ऑप्शन, वी कैन यूज द सब्सटेंस विच कैन बॉयल एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी हम एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करेंगे जो बॉयल हो जाए काफ़ी कम टेम्परेचर पे, जिसके लिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी वहाँ पर तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करना पड़ेगा, अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके जगह एक सोल्यूशन हमारे पास ये है कि एक ऐसा रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करें। एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके बाद यहाँ पे समझना है हम लोगों को कि एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करें जो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाए हमारा, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें एडिशनल कम ना करना पड़े एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 1 है या कुछ गिवन है, और वाटर की जगह हम लोगों ने एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज द सब्सटेंस विच इज हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज रेफ्रिजरेंट, बिकॉज इट इज़ हैविंग सम रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी रेफ्रिजरेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अगर इसमें है तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेंट कहेंगे। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले के क्लासेस में डिटेल में हम लोगों ने बात किया था। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट की अगर हम लोग बात करें या इस सब्सटेंस की बात करें, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसको उस स्पेस में रख दिया जाए कि जहाँ पर हमको टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 25 से कम करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो अब यहाँ पर एडिशनल कोई भी हीट अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, यानी अलग से हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसा हम लोग पहले वाटर के केस में दे रहे थे। यहाँ पे कोई एडिशनल हीट आपको नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे होगा क्या, ये रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली उस स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड इट गेट कन्वर्टेड इनटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, वाटर के केस में क्या हो रहा था, अगर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी अवेलेबल है तो उसको 100 तक पहुंचाना पड़ेगा पहले,
25 से 26 27 होगा, 100 तक जाएगा। उसके बाद जैसे ही 100 पे जाएगा, 100 वाटर से कन्वर्ट होगा 100 वेपर में, तो जो अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा वो लेटेंट हीट होगा, और जो जहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उस स्पेस को ठंडा कर देगा, और उस केस में हम लोग कहेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, इसने हीट एब्जॉर्ब अपने आप कर लिया, नो हीट इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अगर इस रेफ्रिजरेंट को इस एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए हीट का काम करेगी, इसके लिए एडिशनल हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा हम लोगों ने पानी के केस में दिया था, वाटर के केस में दिया था। यहाँ पर जैसे ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड हीट है हमारी, हीट एज ए हीट वो वर्क करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या हीट को एब्जॉर्ब करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर रेफ्रिजरेंट में at constant temperature. This process is known as vaporization or boiling, and the amount of heat extracted from the space, amount of heat absorbed from the space for this vaporization process, that kind of heat is known as latent heat of vaporization at constant temperature. यानी वहाँ पर भी जो अमाउंट ऑफ हीट ही एब्जॉर्ब करेगा अपने आप, अलग से हम हीट नहीं दे रहे हैं इसको हीटअप करने के लिए, इसका फेस को चेंज करने के लिए। ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इसके लिए ऑलरेडी हीट के लिए काम कर रहा है, एज ए हीट वो काम कर रहा है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पर क्या होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन वो कहलाएगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर रेफ्रिजरेंट में वो बदल जाएगा। इस तरीके से इस रेफ्रिजरेंट को हम लोग यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक बार तो ये कन्वर्ट हो गया, तब वो अब होता क्या है, इसमें सेम लिक्विड को, सेम रेफ्रिजरेंट को अगर हमको बार बार यूज़ करना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसके लिए और भी कंपोनेंट हमको लगाने पड़ेंगे ताकि ये फिर से इसका प्रेशराइज हो सके, फिर से ये वापस हो करके इसी स्टेट में आ जाए, ताकि सेम रेफ्रिजरेंट हम लोग बार बार यूज़ कर सके साइकिल में। इसके लिए हमको वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस अरेंजमेंट हमको लगाने पड़ेंगे, जिसको हम कहेंगे दिस इज रेफ्रिजरेटेड या रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स या रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसको कहेंगे। उन सिस्टम में कंप्रेसर होगा हमारा, एवापोरेटर होगा, और भी कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे जिनका अरेंजमेंट एक प्रॉपर होगा, पाइप के थ्रू जुड़े रहेंगे, और ये रेफ्रिजरेंट हम लोग उसमें यूज़ करेंगे ताकि जो प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो अचीव हो सके। इसीलिए यहाँ पर जो एक हम लोग डायरेक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था कि रेफ्रिजरेशन में कैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको मिलता है, लेटेंट हीट के बारे में बात किया था। लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में अगर हम लोगों को प्रोसीड करना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी, कंडेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, एवापोरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपेंशन वाल्व की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारे कंपोनेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा पाइप के थ्रू, उन पाइप में रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाना पड़ेगा, और उन कंडीशन में ये रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। एग्जैक्टली जो पाइप के अंदर जो फ्लो करता है, जो टेम्परेचर प्रेशर चेंज होता है, तो उसके बारे में, सिस्टम के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अगर बात करें हम लोग इस एग्जाम्पल के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि कैसे सॉलिड चेंज हो रहा है। आइस की अगर हम लोग बात करें, वाटर के एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके चलें, तो कैसे आइस चेंज होता है वाटर में, और वाटर फिर चेंज होता है वेपर में। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जब आइस जब कन्वर्ट होगी वाटर में, तो होगा क्या, इट विल एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। द आइस विल एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, क्या हमें बाहर से इसको हीट देनी पड़ेगी, तभी इसका कन्वर्जन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा आइस से वेपर, आइस से लिक्विड के फॉर्म में, यानी बर्फ हमारी पिघलेगी। यानी दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग प्रोसेस, एंड द पॉइंट एट विच द मेल्टिंग विल टेक प्लेस, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। यानी जहाँ पर आपका मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। सो यहाँ पे होगा क्या, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इसको, आइस को, या हीट हम देंगे तभी ये कन्वर्ट होगा, मेल्ट होगा वाटर के फॉर्म में। वाटर यहाँ पर बन गया है। अगर हम लोग बात करके चले, मान लीजिए इस आइस का टेम्परेचर मान लीजिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड है,
-5 डिग्री सेंटीग्रेड है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड से होगा क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम मान के चले 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, तो होगा क्या, सबसे पहले अगर हीट देने पे -5 आइस से -5 आइस का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस तक। यानी जैसे ही हम इसको हीट देंगे, इस आइस को हीट देंगे, तो सेम फेज में ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -5 डिग्री सेंटीग्रेड टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो अमाउंट ऑफ हीट होगी, ये से हम कहेंगे दिस इज सेंसिबल हीट, यानी द हीट गिवन टू द सबस्टेंस इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर इन द सेम फेज, दैट काइंड ऑफ हीट इज नोन एज सेंसिबल हीट एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेंसिबल हीटिंग। यानी -5 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बदलने में जो टेम्परेचर चेंज होगा इसका, सेम फेज में आइस आइस ही है यहाँ पे अभी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, -5 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे दिस इज सेंसिबल हीटिंग, या सिंपली हीटिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, लेकिन सेम फेज से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो हीट हम देंगे उसको हम कहेंगे दिस इज सेंसिबल हीट। अब होगा क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। ये आइस है, ये वाटर है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस विल कन्वर्ट into 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। फर्स्ट क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट काइंड ऑफ the process is known as sensible heating, because the certain amount of heat is being absorbed from this ice, and that kind of heat is known as sensible heating, because sensible heat, because the phase does not change, only temperature change take place from -5 डिग्री सेंटीग्रेड to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस जो होगी वो कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। इस दौरान 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस जब कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो। दैट काइंड ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन होगा क्या, सिर्फ आइस कन्वर्ट होगी लिक्विड में। दिस प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। यहाँ पर ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा दिस इज मेल्टिंग प्रोसेस, बिकॉज मेल्टिंग प्रोसेस में होगा क्या, द सॉलिड फेज गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज, और जो अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सेम फ्रीजिंग पॉइंट पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस से कन्वर्ट होने के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो हमारे जो हीट कहलाएगी दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्ट होगा, अगर हम फिर से हीट दें इसमें तो होगा क्या, वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा, कहां तक राइज करेगा, 100 तक राइज करेगा। 100 वाटर, 100 स्टीम या वेपर, कोई भी लेके चल सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक। यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार है, उस केस में हम लोग ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर भी इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं चीज़ों को, वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1.01 बार के लिए समझ रहे हैं। यानी अब यहाँ पे अगर हम लोग हीट देंगे तो वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने में जो अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे, दैट इज नोन एज सेंसिबल हीटिंग अगेन। That is known as sensible heat, because sensible heat is the amount of heat required to change the temperature in the same phase, यानी phase यहाँ पे सेम है और टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो सेंसिबल हीटिंग ये कहलाएगा, दिस इज ओनली सेंसिबल हीटिंग। लेकिन अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जैसे ही चेंज हो, जैसे ही हम हीट देंगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम या वेपर में कन्वर्ट होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में, यानी यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर, एब्जॉर्ब बाय द वाटर
is known as the latent heat of vaporization, because the kind of vaporization process take place in which the phase transformation will take place from liquid to vapor form at constant temperature. This is known as vaporization process, and the amount of heat absorbed by the water itself, that is known as the latent heat of vaporization. यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में बदलने के लिए जो कांस्टेंट टेम्परेचर में वेपर के फॉर्म में जो बदलेगा, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद अगेन ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका रिवर्स देखें, स्टीम कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे स्टीम है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर है, अगर उसको कन्वर्ट करना है, अगर जाहिर सी बात है आइस तक लाना है, तो इसमें से हीट हमको निकालनी पड़ेगी। जैसे इधर से इधर चलेंगे तो हीट आपको देनी पड़ेगी, जैसे इधर से इधर चलेंगे तो हीट आपको निकालनी पड़ेगी। स्टीम से हीट निकालेंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर से लिक्विड बदलने के लिए लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वो कहलाएगा, क्योंकि प्रोसेस जो होगा वो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाएगा। कंडेंसेशन प्रोसेस में हम ये कहेंगे कि वेपर फॉर्म जो होगा वो चेंज होगा लिक्विड फॉर्म में। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच द वेपर water vapor get converted into liquid, water vapor get converted into liquid phase. So, this is known as basically condensation. So, and the amount of heat which is extracted from the steam, which is extracted from the vapor, that is known as the latent heat of condensation, because the condensation process take place और जो amount of heat इस process के दौरान जो निकलेगी उसे हम कहेंगे this is the latent heat of condensation. अब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदल गया। अब क्या होगा, जैसे ही हीट हम निकालेंगे तो इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक। जो हीट हम निकालेंगे वो सेंसिबल हीट होगी, और सेम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट होगा तो उस केस में जो हम हीट निकालेंगे उस वाटर से, उसे हम कहेंगे दिस इज लेटेंट हीट, जो हम लोगों ने पहले उसको दिया था। इस केस में ये प्रोसेस कराएगा फ्रीजिंग और ये प्रोसेस कराएगा कंडेंसेशन। यहाँ से इसका कन्वर्जन कराएगा मेल्टिंग, और इससे यहाँ से यहाँ कन्वर्जन कराएगा वेपोराइजेशन। इस तरीके से जो आइस बनी हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बन गई। अगेन अगर इसको और ठंडा किया जाएगा -5 तक पहुँचाया जाएगा या -7 तक पहुँचाया जाएगा, तो उसमें हम लोग ये कहेंगे कि सेंसिबल हीट को आपको निकालना पड़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरफ बढ़े तो हीट को एडिशन करना है, अगर रिवर्स अगर हम लोग देखें तो हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि रेफ्रिजरेशन में किस तरीके से फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वेपोराइजेशन में फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उन प्रोसेस को क्या 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 कहते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल को जानना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग या वेपोराइजेशन होता है एक ही सब्सटेंस में, और कैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आगे क्लासेस में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे रेफ्रिजरेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।